Hello everyone, welcome back. So in the last lecture, I have left a task for you. I left a task for you, that is you need to create the Cayley table for U24. We have checked out and verified that these are the elements. There are 8 elements in U24. So I left the task to identify the identity element and to identify the inverse of each of the elements. So have you done it? If you haven't, then pause this video and complete it now and comment your answers right now. Okay, so let us start with this lecture. In this lecture, we are going to study about some more finite groups, well-known finite groups that will be used as an example for further studies. And then we will move on to learn what is the order of an element in a group. As we have learned about the order of a group, which is equal to the number of element in the set G. But here we will discuss about what is order of an element in a group. Okay. So first of all, let us start with a few more examples. Our first set is, let us construct the set first. A set which consists of the cube roots of unity, all those A such that A cube is 1. We need to collect all those A such that A cube is equals to 1. So what are the elements in these set? What are the elements in the set S? बताइए. Cube roots of unity 1, -1 plus minus root 3 by 2, right? यही होता है. या फिर हम क्या लिखते हैं 1 omega and omega square. So our set S is this set. So let us make a Cayley table for the set. First of all, we need to define a binary operation on this set to make it an algebraic structure, and then we will verify with the Cayley table whether it is a group or not. Okay, so the operation here is the simple multiplication operation. Multiplication of complex number. Right? How we multiply two complex number? Suppose this is x plus iy and this is a plus ib, then what will be the product? It's xa minus yb plus xb plus ya, right? So in the similar fashion, here the binary operation is the multiplication of complex number, the same operation. Okay, so this is 1 omega omega square, 1 omega omega square. 1 into 1 is 1. 1 into omega is omega. 1 into omega square is omega square. Similarly, here omega and here omega square. Now, omega into omega is omega square. Omega into omega square. Omega into omega square. So, power will be added. It is omega cube. But we say that these are the cube roots of unity. And omega is one of the roots. So, it will satisfy the equation. So, omega cube is equals to 1. Right? So, in place of omega cube, we can write 1. Okay, next omega into omega square. Omega into omega square is omega cube again, which is equals to 1. Now here we have omega square into omega square, omega square into omega square. Since here the binary operation is multiplication, so just multiply, we will have omega raised to power 4, which can be written as omega cube into omega. What is omega cube? Omega cube is 1 into omega, so it is omega. So it is omega. Okay. Now check whether all the entries in this table are from this set or not. We can see that all the entries are from the set itself. So the closure property holds. Closure property holds for this binary operation with respect to this binary operation. Next, what about associativity? So complex numbers multiplication. We are multiplying complex numbers. Let us say we have 3 complex number and we are multiplying them. So whether this multiplication is associative or not. It is associative. So it is associative on the set also, on a subset of complex number also. Now say there is a property P1 which holds for this set S, which holds for the set S. अगर वो पूरे सेट के लिए होल्ड कर रही है तो it will hold on a subset also, unless there is the question mark on the closure property. Since associativity, what does associativity says? That if we operate B and C first and then operate A, or whether we operate A and B first and then operate C, the answer will be same. So this is holding for complex numbers in general. 1 omega and omega square are also the complex numbers. So it will hold for S also. Right? So associativity is verified. Next is identity. What is the identity element in this group?
the element corresponding to which the column will look like exactly the header column, right? So 1 is the identity element here. Now what about inverse? What is the inverse of 1? Where can we see the identity here? So 1 is the inverse of 1. Identity and inverse, identity element is inverse of itself. Next, omega inverse. Inverse of omega is omega square, since we found that omega into omega square is 1 according to this table. So if a into b is equals to 1, the identity element, this implies a is inverse of b and b is inverse of a. So omega square inverse is omega, right? We have also studied about, in general, a group of order 3. A group of order 3 is always a abelian group, a cyclic group, right? Under the binary operation, if closure holds. Okay, so inverse we have find out for each of the element. What about commutativity? So we can see along the diagonal it reflects, right? If you consider this matrix, this is symmetric. Omega, omega, omega square, 1, 1. So it is abelian group. Commutativity hold for this group, right? So this is an example of abelian group. Next, we let us consider the fourth root of unity. Next set is the fourth root of unity, all those a such that a raised to power 4 is 1. So now what are the elements of this set? A raised to power 4 minus 1 is equals to 0. It can be factorized into a square minus 1, a square plus 1 is equals to 0. If we put a square minus 1 is equals to 0, we have two possibilities. A is equals to plus minus 1. If we put a square plus 1 is equals to 0, then we will have the another two possibilities that are plus minus iota. So set S contains 1, minus 1, I, minus I. Now let us define a binary operation on this set. The binary operation is again the complex multiplication. As the multiplication is defined on the complex numbers, the same operation is taken into consideration. That is a star b is equals to ab. Okay, let us create the Cayley table. 1 minus 1 iota minus iota. 1 minus 1 iota minus iota. So what is 1 into 1? 1 into 1 is 1. 1 into minus 1 is minus 1. 1 into iota is iota. 1 into minus iota is minus iota. 1 into minus 1, same. Next, minus 1 into minus 1. If we multiply minus 1 with minus 1, we will get 1. If we multiply minus 1 with iota, we will get a minus iota. If we multiply minus 1 with minus iota, we will get iota. Next, iota with minus 1, minus I. Minus I with minus 1, we will get I. Minus I with I. So I square is minus 1 and we have minus 1 in front. So multiply it, we will get 1. Minus I minus I. So minus minus is plus. I square is minus 1. So it is minus 1. What about these two places? I square minus 1. I into I is minus 1 and there is minus in front. So it is 1. Right? Have you got this Cayley table? Now identify the identity element. Verify whether the closure property holds or not. And associativity is again, since complex multiplication is associative, so it is associative on this particular group also. Closure property बताइए सबसे पहले क्या hold कर रही है? बिल्कुल कर रही है, because there is no entry in this table which is not from this set, right? So closure property holds, associativity holds. Next, identity element. So 1 is working as an identity because the column respect to the with respect to 1, we are getting identical to the header column. Next, inverses. Tell me what is inverse of 1. Since 1 is the identity, inverse of 1 is 1 itself. What is the inverse of minus 1? Where are you getting 1 in this? So inverse of minus 1 is minus 1 itself. What is the inverse of I? Inverse of I is minus I. What is the inverse of minus I? Inverse of minus I is I. Right? Correct hai? Okay. Now observe this. Is it commutative? Commutativity? What about commutativity? If we take this, the diagonal, principal diagonal, are we getting the same elements? Minus 1, I, minus I. Is it so? Yeah, minus I aayega na? Sorry. Right? I, 1, 1, minus I, right? So it is commutative. Okay, right? Next, we will try to find out what all other possibilities are there for a group of order 4. So let us consider 4 elements.
a set G containing an identity element and three other distinct elements A, B, and C. Let star be the binary operation defined on G, and G star is a group. We will try to find out all possible Cayley tables we could have for a group of order G, a group of order 4. Okay. So let us start with first identity element. How will identity element operate with other elements? We know that if E is an identity of group G with respect to the binary operation star, then it must satisfy A star E is equals to A is equals to E star A for all A belongs to the group, right? For all elements, for every element of group G, A star E should be equals to A. So here E star E will be E. This is A, this is B, C, A, B, C. Right. Now, what are the possible values for this position? Since we checked in the previous lectures that cancellation law states that since it is a group, the cancellation law holds, both left and right cancellation law hold. So, no element can be repeated in a row or in a column, right? So, in this row, we have A. So, at this position, we cannot have A. Similarly, in this column also, we have A. So, at this position, we cannot have A. So, what other elements? E, it can be E, it can be B, or it can be C, right? So let us write all these possibilities. Okay, let's move ahead and check the possibilities for this position. Since in this row we already have A and E, so at this position we could have B or C, but in this column we already have B. So the only possibility left is C for this position, right? If we have C at this position, so at this position the only possibility left is for the B, right? This much is clear. Next, what about this position? We cannot have B, we cannot have A, we cannot have E. So what we are left with? We are left with C. What about this? We are left with B. Now what about this? We cannot have B, we cannot have C. So what we are left with? We can have A or we can have E, right? So let us see, let us take, we have A here. If we have A here, then E will be here, and E here, A here. Okay. For this similar, if we had E here, then the table will look like, let us make it here, E C B, C E A, C, sorry, B B A, right? So these two Cayley tables we can have if we would have fixed E here. Next, let us fix B here. So if it is B here, so we cannot have A and B at this position. We are left with C or E. So if we fix C here, then E, we will have E here, right? Now we need to construct one more table in option because we can have E here and C here. So let us add the same entries in one table. It's E A B C, A B C E. So in place of C, we will have E C, right? Okay. Now here observe that if we set E here, and then the only choice for this position is C, but in this column then we will have two C's, right? So this is deleted, this choice is deleted, will not be taken into consideration. So let us delete this choice. Let's get back to this table. Okay, now similarly, if I fix, what are the choices for this position? It can be C or E. If I take C here, then E will be here. If I would have taken E here, then C will be here, but in this row we will have C two times. So the only choices, we need to have C at this position and E at this position, right? Okay, we have B, we have C, so choice for this is whether A or E, whether A or E. If I have A here, then I need to write E here. Again, we have two E's in this column, so the only choice I have is I need to write E at this position and A at this position, right? Okay, what about this? This will be A, this will be a B. Okay, there is the another table for this group. Okay, what if I have chosen C at this position? So what are the choices for this position? It cannot be A, it cannot be C, because we already have this in this row, and it cannot be B. So what we are left with? We are left with E. A, C, E. So we are left with B. What about this position? We cannot have A, we cannot have C, so we are left with E and B here again. Okay, at this position we can have A or we can have C.
if I write A here, then we'll have C here. But in this column, we have two C's then. We will have two C's. So I need to put C in this column and A in this column, right? Now, what about this position? This needs to be a A and this needs to be a E, right? Is there any other possibility for the table? No. So we will have four tables. Let us check all these are different or there is any similarity. So in this table, we are having ECB. In this, we have BCE. In this, we have CEB. And in this, we are having ECB. So all four tables are distinct. So let us observe the properties in all these four tables one by one. Let us start with this one. So is it closure property? Closure property holds. Yes, all the elements are from the group itself. Associativity holds since we are taking simple multiplication, or star since we are taking G as a group, so it associativity holds. What about inverses? What is inverse of A in this Cayley table? Inverse of A is A itself. Inverse of A is A itself. What is inverse of B? Inverse of B is C. Inverse of B is C. Inverse of C is B. Right? So in this table, A is inverse of itself, identity is inverse of itself, and B and C are inverse of each other, right? Now, is it commutative? Is it commutative? AA, BB, CC, CB, yes, it is commutative, so abelian group, right? Now, let us observe the next table. In this table, what we observe that inverse of E is E, inverse of A is C, inverse of B is B itself, and inverse of C is A. So again the same pattern, right? In the previous table also, what we have that B and C are inverse of each other. In this table we have A and C are inverse of each other and B is a self-inverse, right? Is it abelian? Yes, it is abelian. Commutativity is satisfied. So in both the tables till now we have observed that the groups corresponding to which these Cayley tables we got these Cayley tables are always abelian, and one of the non-identity element is a self-inverse, right? And two of the non-identity elements are inverse of each other, right? Okay, let's move ahead. In the next table, we have this table. E inverse is E, A inverse is B, and B inverse is A, and C inverse is C. So again, A and B are inverse of each other, and C is the self-inverse, right? Is it abelian? Yes, it is abelian. Okay. In the next table, what we have is, in this table, inverse of E is E, inverse of A is also A, inverse of A is A, inverse of B is B, inverse of C is C. मतलब कि अगर किसी ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग ऐसी केली टेबल भी बन सकती है जिसमें एवरी एलिमेंट इज अ सेल्फ इनवर्स, राइट? Every element is a self inverse, and here you observe that A star B is C, is the third element. A star B is the third element. Similarly, A star C is B, B star C is A, right? Correct? So the group with these elements, one is identity, and all non-identity elements are also self-inverse, right? They are inverse of itself. This group is known as Klein 4 group. We denote it with K4 or V4, Klein's 4 group, right? And group with 4 elements, wherein the elements will satisfy the property that they are inverse of each other. Sorry. They are self-inverses, right? Each element is inverse of itself. Okay, is it abelian? Yes, it is abelian. So let us conclude. If we have a group of order 4, then we have checked all the possible Cayley tables, possible composition table for that group, right? And in all these 4 tables, we observe that in each of this case, group G is abelian. Group G is abelian. In each of these cases. Now, in 3 of the cases, identity and one of the non-identity elements
one of ABC are self-inverse, and the remaining two are inverses of each other in three of the tables. In one table, we observe that all four elements are self-inverses, right? Now tell me about cyclicity. Is it cyclic? B here, C here, then E. Then we have B, C, E, then A. Yes, it is. It is cyclic. What about this one? Is it cyclic? Is it cyclic? No, it is not. Right? So a group of order 4 can be cyclic or it cannot be cyclic. But it is always abelian. Right? And we can say that there are two elements in that group who are self-inverse, who are self-inverses in each of the group, right? Each possible group of order 4. राइट? क्लियर है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 के बारे में? हमने सारी पॉसिबल के लिए टेबल्स बनाई हैं, उनसे हमने ग्रुप 4 के बारे में इतना जान लिया है. Okay, next the another group that we need to study is one we called quaternarian group. What is quaternarian group? So in this group we have 8 elements denoted by Q8. So what are the elements? It is plus minus 1, plus minus I, plus minus J, and plus minus K. Vector algebra in your class 12 where you have studied that J is equals to K, right? In this order you have it. I, J, K. So if we go in this direction counterclockwise, then we have positives, right? I, J is K. But if we go clockwise direction, then Ji is equals to minus K. Okay. So in this fashion, we need to define here the operation. Now, what about if I multiply I with I? So as in I into I is I square, and I square, or J square or K square, they all are equals to minus 1. Okay. So let us make the K table for this group. It's plus 1, minus 1, I minus I, J minus J, K minus K. 1 minus 1, I minus I, J minus J, K minus K. So 1 into 1 is 1, 1 into minus 1 is minus 1, 1 into I is I, minus I into 1 is minus I, so same. 1 will work as an identity element for this group. Now 1 into minus 1 is minus 1, minus 1 into minus 1 is 1. As in multiplication goes, we will go in the same fashion. I minus 1 is minus I into minus 1 is I, J into minus 1 is minus J into minus 1 is J, K into minus 1 is minus K, and this is K. Okay, so let me fill this also. Similarly, we'll have minus I minus J, J minus K, K. Next, I into I, as I says I square is, I star I is minus 1. Then I star minus I. So we know I star I is minus 1 and there is minus in front of it. So we'll have 1. Next, minus I will again have 1. Minus I, so it minus 1. It is minus 1. Okay, I j is K. I minus j is minus K. I k is minus j. I minus k is j. Now, minus I. Look, minus I j. बताइए minus I and j. क्या देगा? We'll have k or minus k. बताओ minus k. Next, minus I minus j. I j. We'll have k. Minus I and k. So we'll have plus ka j. Next, we have minus I minus k. So we'll have I k j. So it's I j k. So it's minus j, right? Next, j I. It's I, j, and k. If we go like this, we'll have positive. If we go in the another way, we'll have negatives. J I is minus k. Next, we have minus j and I. So it's j I. So it's minus k, and we have another minus. So we'll get k. K I, that is j. Minus ki, that is minus j. Okay. Next, j minus I, j I. So it's minus k, but we have another minus, so it's k. J is minus 1. J minus j is 1. J k is I. J minus k is minus I. Next, minus j minus I. So j I is minus k. Okay. Then minus jj is 1. Minus j is 1, minus 1. Minus jk. So jk is I, but we have minus, so minus I. Minus j minus k. So jk is I, right? Next, k minus I. K and I, we have j, but we have 1 minus, so minus j. Then kj is minus I. We have k minus j is I. K is minus 1. K minus k is 1. Minus k minus I. So k
I is J, right? J minus K and J. So K J is minus I, right? और उसके आगे हमारे पास एक माइनस का है तो क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, and this is minus I. Next we have minus K, that is 1, minus K, that is minus 1. So this is the composition table we will have for this quaternarian group. Okay, now observe that the inverses of each other. Who are the inverse of each other? So first of all, for the 1, we observe that here we have the identity element 1. So 1 is inverse of itself. Again, for minus 1, we observe that 1 is here. So minus 1 is also inverse of itself. Next, for I, we have 1 here. So inverse of I is minus I. For minus I, we have 1 here. So inverse of minus I is I. What about inverse of J? Inverse of J is minus J. Inverse of minus J is J. Now what about inverse of K? Inverse of K is minus K, and minus K inverse is K. So we have found inverse of each of the element. Right? Now tell me, is it abelian? Is the group commutative? Do we have a symmetry? No, right? Here we are having J star I, we are having minus K. And what about I star J? I star J, we are having K. So it is not commutative. So this is the first group you have studied in the finite section, which is not commutative. It is not abelian. So it's an important example wherein you will study about non-abelian group. First group you have encountered, which is non-abelian. We have also studied about matrices. Matrix multiplication is non-abelian. That is also one of the group. Okay. So now let us move on to check about the power of an element. Let us say G with the star binary operation is a group. Okay. And let A belongs to the group G. Then what is A raised to power n? So in general setting, if you have 2 raised to power 3, what does it mean? It means that you need to multiply 2 3 times. You need to multiply 2 3 times. 2 into 2 into 2 is 2 raised to power 3. In case of group, what you need to do is, if you have A raised to power 2, what does it mean? It means that you need to have 2 A's, and between them you will operate the group operation that is defined, binary operation that is defined on this group. That is within this algebraic structure with respect to which this is a group. This set is a group. You need to operate that operation between them. So if you have A raised to power n, it means that A star A star A. So the operation will be n times. A are repeated n times, and between them you need to operate the operation of group, the binary operation that you have defined earlier. Okay, what does it mean? Okay, so let us start with Zn. We have studied Zn. Zn is a set consisting of the equivalence classes. So let us say we have Z5. In Z5, we have elements 0, 1, 2, 3, and 4. Right? 5 elements. Alright. Now, while defining this as a group, we have a binary operation with respect to which this forms a group. Right? That binary operation is addition modulo 5, with respect to which Z5 addition modulo 5 algebraic structure. An algebraic structure forms a group with respect to this binary operation. Okay. Now I need to find out 2 raised to power 2. For this element, this 2, I need to find 2 raised to power 2. What is 2 raised to power 2? So we have 2 in the power. So we will have 2 2's, and between them we will operate the star. And in this group, the star is addition modulo 5. So what we will get? 2 addition modulo 5, 2. What will be the answer? Answer will be 4. So 2 square is 4. Now what about 2 cube? What about 2 cube? So we will have 3 2's, and between them we will operate the binary operation of this group. So we will have 2 addition modulo 5, 2 addition modulo 5, 2. So what we need to do is, we need to add all these and mod 5. That will be the answer, right? यही मतलब है इसका कि 2 में 2 को जोड़ना है, जो आएगा उसके ऊपर मोड 5 लगाना है, फिर अगेन जो आया उसको 2 में जोड़ेंगे और फिर आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे? मोड 5 लगाएंगे. एसोसिएटिव होता है, राइट?
तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 2 6, 6 मोड 5, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो 2 का क्यूब आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए कि 3 की पावर 4 क्या आ रहा है, 3 की पावर 4 क्या आ रहा है इन दिस ग्रुप अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। जल्दी कैलकुलेट कीजिए। सो 3 की पावर क्या कैलकुलेट करनी है 4, तो 3 कितनी बार रिपीट होगा, 4 बार रिपीट होगा। और उसके बीच में ऑपरेशन कौन सा लगेगा, इस ग्रुप का ऑपरेशन लगेगा। क्या ऑपरेशन है यहाँ पर, एडिशन मॉड्यूलो 5, तो ये ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो अब एक एक करके कर लो। 3 और 3 6, 6 में मोड 5 लगा दिया तो कितना बन जाएगा 1। फिर हमारे पास ये तो बचे हैं अभी ऑपरेट करने, ठीक है, ये दो तो बच गए थे। अब इन दोनों पर लगा लो, 3 और 1 4, 4 मोड 5 करेंगे तो 4 ही आना है, एडिशन मॉड्यूलो 5, 1 3 बच गया। अब यहाँ पर लगाओ 4 और 3 7, 7 मोड 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो 3 की पावर 4 अगर आपको पूछे अंडर दिस ग्रुप तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें। तो अगर तुमसे कोई भी पूछ रहा है कि अगर आप निकाल के बताइए मुझे 4 की पावर 2 कितनी आएगी, 4 रेस टू द पावर 2 कितना आएगा, यहाँ पर बताओ क्या आएगा। क्या करना है, 4 स्टार 4 यानी 4 एडिशन मॉड्यूलो 5 4 क्या आएगा, 4 और 4 8 मोड 5, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बात इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कई बार आपको क्या लिख कर देता है कि जैसे यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 5 है या जहां पर भी एडिशन होता है तो वहां पर क्या कर रहे हो आप, ये स्टार जहां पर एडिशन है तो ये क्या बन जाएगा, ये ए प्लस ए एंड सोन प्लस ए बन जाएगा। कितनी बार बन जाएगा, एन टाइम्स बन जाएगा। तो आपका ए कितनी बार ऐड हो रहा है, एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये एन ए के बराबर आ जाएगा। तो जब भी आपका ऑपरेशन, यहाँ पर जो ऑपरेशन वो एडिशन होता है तो आपका ए रेस टू पावर एन जो है ना वो एन ए में रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन डिफरेंट है तो अलग होगा। नाउ सपोज हमने एक ग्रुप पढ़ा था इनफाइनाइट में, ठीक है, रेशनल्स का सेट लिया था हमने जिसमें से हमने 0 बाहर निकाल दी थी, तो क्यू स्टार हमने लिया था। ठीक है, और उस पर हमने स्टार डिफाइन किया था, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3, राइट, याद है। सेकंड और थर्ड लेक्चर में आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था, थर्ड लेक्चर में आई गेस। तो अब बताइए मुझे कि अगर मैं ये ऑपरेशन लेकर चलूं तो 3 की पावर 3 क्या आएगा, 3 इज अ रेशनल नंबर, राइट। 3 बिलोंग्स टू क्यू स्टार, बिल्कुल, क्यू स्टार इज क्यू माइनस माइनस 0। ओके, सो बताइए 3 की पावर 3 अंडर दिस ग्रुप क्या आएगा, जल्दी क्या करना है हमें, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, उनके बीच में स्टार लगाएंगे। अब यहां पर जो स्टार है वो किस तरह डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3। सो 3 स्टार 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 3 बाई 3 स्टार 3 एज इट इज रखते हैं अभी। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3 स्टार 3 आ गया। ठीक है, अब अगेन स्टार क्या करेगा, ए बी बाई 3, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 बाई 3। तो 3 की पावर 3 क्या आया, 3 की पावर 3 हमारे पास 3 ही आ गया। समझ रहे हो। यहां पर क्या हो रहा था, क्या यहां पर तुम बोल सकते हो कि ए की पावर एन इज इक्वल्स टू, जो सिंपली हम ए को एन टाइम्स लिख दे और उसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। अगर इस हिसाब से चलते कि 3 ए को हम 3 बार लिख देंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 तो 27 आना चाहिए था इन जनरल सेटिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्रुप थ्योरी में होते हो और ग्रुप की बात करते हो तो ए की पावर एन, किसी एलिमेंट की पावर एन करके अगर पूछ रहा है, कहीं पर ए की पावर एन लिखा है तो ध्यान रखिएगा कि आपको ए को एन टाइम्स तो लिखना है लेकिन उसके बीच में ऑपरेशन आपको ग्रुप का ही लगाना है। ग्रुप का जो ऑपरेशन है वही लगेगा। अगर एडिशन है तो एडिशन लगेगा, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन लगेगा। अगर कुछ इस तरह डिफाइन किया है तो ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कई बार क्या होता है कि ए रेस टू पावर एन आपको एन ए के बराबर लिखकर दे देता है जब आपका ग्रुप में जो ऑपरेशन है वो एडिशन होता है। और क्यों हो जाता है ये एन ए के बराबर, आई होप आपको ये यहाँ से समझ आ गया होगा। ओके, तो हमने यहाँ से Z5 पे एग्जाम्पल देखा। अब हम एक और एग्जाम्पल U का भी देख लेते हैं यूनिट में। सपोज हमारे पास है U8, तो U8 हमारा क्या आएगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें जल्दी से बताओ। ऑल दोज इक्विवेलेंस क्लासेस whose GCD with 8 is 1. So 1, 3, 5, 7, right? How many elements? 4 elements. What is 5, 8? 2 raised to power 2 into 2 minus 1. That is 4, right? So order of this group is 4. Now tell me what is 5 raised to power 4? What is 5 raised to power 4 under U8 under multiplication modulo 8? इस ग्रुप में 5 रेज टू पावर 4 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा बताओ जल्दी। क्या करना है, 5 को 4 बार लिखना है, 1 2
3 और ये हमारा 4, और उसके बीच में हमें ग्रुप का ऑपरेशन लगाना है जो कि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 है, यानी क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 5। ठीक है, अब यहाँ पर तुम एसोसिएटिविटी लगा लो, 5 5 25, 25 मॉड्यूलो 8 1 आ जाएगा। अगेन बीच में हमारा मॉड्यूलो 8 यहाँ पर अलग रख लो, 5 5 25 मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है अब यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 है, राइट। सो 5 5 आर 25, मोड 8 इज 1, राइट। नाउ 1 1 जा 1, 1 मोड 8 इज 1, राइट। तो 5 रेज टू पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इन दिस ग्रुप। ठीक है, अब वापस से तुम ये क्वार्टरनेरियन वाले पे आ जाओ और उसमें मुझे बताओ कि अगर मैं i की पावर 3 करूं तो क्या आएगा। इसमें मुझे इस टेबल से बताओ कि अगर मैं i की पावर 3 करूं तो क्या आएगा। ठीक है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते, सोचो थोड़ा, दिमाग पर जोर डालो, कैसे कैलकुलेट करना है उससे सोचो। i की पावर 3 मतलब मुझे आई 3 बार लिखना है और उसके बीच में मुझे ग्रुप का ऑपरेशन लगाना है। अब यहाँ पर i स्टार आई मैं इस टेबल से बता सकती हूँ क्या आएगा, बता सकती हूँ। यहाँ पर i है तो ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाली रो, और यहाँ पर i है क्योंकि मुझे i स्टार आई चाहिए, तो ये वाला कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही आएगा, मतलब -1। तो i स्टार आई क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बच गया, -1 स्टार आई बच गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, -1 स्टार आई, तो -1 वाला रो ये है, तो -1 मतलब ये वाली रो, स्टार आई चाहिए तो आई मतलब ये वाला कॉलम, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा मतलब ये, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, -i आ जाएगा। ठीक है, तो केले टेबल से भी तुम पावर्स कैलकुलेट कर सकते हो, पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और जल्दी से मुझे बताओ के का क्यूब क्या बनेगा, के का क्यूब क्या बनेगा, के का क्यूब क्या बनेगा। फिर मुझे बताओ कि -1 की पावर 3 क्या आएगी, जल्दी जल्दी बताओ आंसर्स। के का क्यूब क्या बना, के स्टार के। सो व्हाट इज के स्टार के, के स्टार के इज -1, -1 स्टार के इज -k, so k cube is -k. Now what is -1 raised to power 3, -1 स्टार -1 क्या आया बताओ जल्दी से, -1 आया। ठीक है, क्लियर है आपको ये पावर्स, ओके। ना इसी पावर की सहायता से हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। चलिए फॉर्मली डेफिनेशन देखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट in a group. So let G under binary operation star be a group. Okay. Let A belongs to G. Then the smallest positive integer n such that a raised to power n is identity of this group, is identity of this group, मतलब a raised to power n identity of group के बराबर आ जाए, वो smallest positive integer n हमारा क्या कहलाता है, this n, वो smallest positive integer n is called order of a, order of a, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, order of a ऐसा लिख सकते हैं, o ब्रैकेट a, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो order of a, हम यही नोटेशन यूज करते हैं order of a। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, ग्रुप होगा हमारे पास, ग्रुप है तो उसमें हमारे पास एक सेट होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास वो 4 एक्सियोम सेटिस्फाई करता होगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो उसमें क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। तो हम एक एक करके एलिमेंट उठाएंगे ग्रुप जी का, उस एलिमेंट की कितनी स्मॉलेस्ट पावर रेज करें कि हमारे पास क्या बन जाए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, तो वो स्मॉलेस्ट पावर हमारी क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट कहलाती है इन ग्रुप जी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास है Z5, इसमें मुझे बताइए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1, Z5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5, Z5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5। तो सबसे पहले तो मुझे बता दो सेट क्या है, सेट हमारे पास है सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस 0 1 2 3 4, राइट। कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 1 रेज टू पावर n किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए। सो एडिशन मॉड्यूल ऑफ 5 के अंदर हमने देखा था कि आइडेंटिटी क्या बनेगी, आइडेंटिटी हमारी कौन बनती है, 0 एलिमेंट बनता है, कौन बनता है, 0 एलिमेंट हमारे क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है अंडर एडिशन। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो क्या n की वैल्यू होगी सच दैट 1 रेज टू पावर n 0 बन जाएगा। तो शुरू करते हैं।
अगर मैं 1 की पावर 1 निकालूं तो क्या होगा? 1 की पावर 1 क्या होगा बताओ? 1 होगा ना। 1 की पावर 2, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 1 1 दो बार और उसके बीच में ग्रुप का ऑपरेशन, दैट इज एडिशन मॉड्यूलो 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट 1 की पावर 3 क्या होगा? 1 1 1 और उसके बीच में ग्रुप का ऑपरेशन, तो क्या आ गया हमारे पास? 1 + 1 + 1 दैट इज 3 mod 5 इज 3। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पर क्योंकि हमारा एडिशन है तो 1 रेज टू पावर n इज इक्विवेलेंट टू n इंटू 1। ये इसी के बराबर आ रहा है। 1 रेज टू पावर 1 1 आया, 1 रेज टू पावर 2 2 इंटू 1 2 आया, 1 रेज टू पावर 3 3 इंटू 1 3 आया। ठीक है, ओके। सो 1 रेज टू पावर 4 कितना आ जाएगा? 1 रेज टू पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 4। 1 रेज टू पावर 5 कितना आ जाएगा? 5 5 लिखोगे? 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि भूलो मत यहाँ पर क्या है? मोड 5 भी है साथ में साथ। ठीक है, तो मोड 5 जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। तो 1 की हमने 1 से शुरू की थी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, 1 से शुरू की, फिर हमने देखा कि 4 तक कोई भी हमारी 0 नहीं आई। ठीक है, कौन सी पहली पावर थी हमारी जो 0 आई? वो थी 5। तो 5 वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आया सच दैट 1 की पावर 5 रेज करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, विच इज आइडेंटिटी फॉर दिस ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा? यहां पर 5 हो जाएगा। समझ आया? अब मुझे बताओ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 0? 0 है इसका एलिमेंट, ग्रुप का एलिमेंट बिल्कुल है। 0 का ऑर्डर क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट पावर जो मैं 0 की रेज करूं सच दैट मेरे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो 0 की पावर क्या रेज करने पर 0 आ जाएगा? स्मॉलेस्ट 1 ही रख दो, 0 की पावर 1 क्या आएगा? 0 आएगा। सही है, सही है। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? हमेशा किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा आपका? हमेशा 1 आता है, बिकॉज आइडेंटिटी की पावर 1 करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उसकी पावर वो रेज करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 होता है। और अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही हो सकती है किसी भी ग्रुप में। मतलब कि अगर आप किसी भी ग्रुप जी की बात कर रहे हो तो उसमें इकलौता एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 होगा वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर 1 का ऑर्डर हमने देखा 5 आ गया, तो जल्दी से बताओ 2 का ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ 2 क्या आएगा? 2 की मैं कितनी पावर रेज करूं? 2 रेज टू पावर n। ये n की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास क्या आ जाए? मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 0 बन जाए। बताओ। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा एडिशन मॉड्यूलो 5 है तो क्या करना है? 2n मोड 5 आपका किसके बराबर आ जाना चाहिए? 0 के कॉन्ग्रुएंट आ जाना चाहिए। तो n की वैल्यू बता दो मेरे पास क्या आएगी? क्या 2 1 जा 2 0 के कॉन्ग्रुएंट आएगा? क्या 2 2 जा 4 0 के कॉन्ग्रुएंट है ना? क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 0 के कॉन्ग्रुएंट है ना? वो तो 3 के कॉन्ग्रुएंट आया। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, रुको। n की वैल्यू रखिए यहाँ पर एक एक करके। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा विच इज ऑल्सो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 mod 5 विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0। n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 4 2 8 8 mod 5 विच इज ऑल्सो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, राइट। अगर मैं इनकी वैल्यू 5 रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10 mod 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दो स्मॉलेस्ट n हमने रखा जिससे हमारा जो 2 रेज टू पावर n है वो 0 आ गया। वो क्या था? वो था हमारा 5। तो ऑर्डर ऑफ 2 भी यहाँ पर क्या है? 5 ही है। ऐसे ही आप ऑर्डर ऑफ 3 निकालोगे तो वो भी आपका 5 ही आना है। ऑर्डर ऑफ 4 भी आपका 5 ही आना है, चेक कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आप चेक करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैंने चेक किए हैं कि नहीं किया, आपका ऑर्डर क्या आया है। ओके, अब कुछ और ऑर्डर चेक कर लेते हैं किसी और ग्रुप स्ट्रक्चर पर। सपोज हमारे पास Z है अंडर एडिशन, Z अंडर एडिशन ग्रुप बनाएगा? बताओ, याद है तुम्हें इनफाइनाइट ग्रुप्स? ठीक है, इसमें आइडेंटिटी की तरफ कौन काम करेगा? 0 ही काम करेगा। कौन काम करेगा? 0 ही काम करेगा। तो इसमें क्या तुम 2 का ऑर्डर बता सकते हो? 2 की स्मॉलेस्ट पावर जो हम रेज करें जिससे मेरे पास 0 बन जाए। 2 की स्मॉलेस्ट पावर जो हम रेज करें जिससे मेरे पास 0 बन जाए, क्या ऐसा तुम्हें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। Z इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। ओके, सिंस यहाँ पर एडिशन है तो 2 रेज टू पावर n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू n लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 2 2 n टाइम्स होगा, बीच में क्या लगेगा? एडिशन लगेगा, तो 2 हमारा n टाइम्स ऐड हो गया यानी 2 इंटू n हो जाएगा। 2 इंटू n क्या कभी 0 के बराबर होगा? यहाँ पर मॉड्यूलस कुछ नहीं है, रिमाइंडर किसके साथ नहीं निकालना है, यहाँ पर सिर्फ ऐड होती रहेगी टर्म्स। ठीक है, तो 2 इंटू n क्या कभी 0 बनेगा? यहाँ से आप देखोगे तो आपकी n की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। n की पॉसिबल वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन हमने कहा था कि n क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या? स्मॉलेस्ट
पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसा कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है सच दैट मैं 2 की वो पावर में रेज करूँ और मेरे पास 0 बन जाए। तो यहाँ पर आप 2 का ऑर्डर नहीं निकाल सकते इनफाइनाइट ग्रुप्स में, उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, जब आपका n क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर इनफाइनाइट ही हो जाएगा। ओके जी, अब हम बात करते हैं एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास है U15, क्या है, U15, तो इसमें बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, U15 हमें बताना है। वो सारी इक्विवेलेंस क्लास इकट्ठी करेंगे जो Z15 से बिलोंग करती है और जिनका जीसीडी हमारा 15 के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों क्यों, रीजन याद है तुम्हें, देखा है पिछला लेक्चर? क्योंकि इनवर्स सिर्फ उन्हीं का एग्जिस्ट कर रहा था जिनका जीसीडी 1 हो, क्योंकि डायफाइनटाइन इक्वेशन को के सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन होती है कि ए और एन का जीसीडी क्या होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए कांस्टेंट टर्म को। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी 1 आ रही थी, तो यहाँ पर जीसीडी की ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, 1 होना चाहिए। राइट, तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, हाँ जी 1 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 5 7 9 10 11 12 13 14। ठीक है, क्लियर है? और कोई आएगा क्या, बताओ? 5 15 क्या आएगा, 15 इज 3 into 5, so 3 raised to power 1 minus 0, that is 0, into 3 minus 1, similarly into 5 minus 1, so 3 minus 1 is 2, 5 minus 1 is 4, 4 to the 8, there will be 8 elements, 1 2 3 4 5 6 elements। और बताइए कौन सा रह गया, 1 2 3 4, 4 रह गया, 4 and 8 आई थिंक, 4 and 8, राइट। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ पर 2 का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2 अंडर U15 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 15 में 2 का ऑर्डर क्या होगा, बताओ। मैं 2 की वो स्मॉलेस्ट पावर में क्या रखूं कि मेरे पास आइडेंटिटी बन जाए। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या बनेगी, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमारी कौन है, 1 आइडेंटिटी होता है, राइट। तो यहाँ पर 1, तो जो हमने पहले डिस्कस किया था ना लेक्चर्स में, वो बार बार आपका यूज होगा, और वो इस तरह यूज होगा कि वो कोई बार बार आपको बताएगा नहीं, वो मान के चलेंगे कि आपको इतना पता है कि भाई U15 की आइडेंटिटी 1 होता है, ZN की आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। ठीक है, तो उनको अच्छे से समझ लेना कि वो ग्रुप क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्यूटेटिविटी है या नहीं, आइडेंटिटी कौन है, इनवर्स कौन है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n हमारा क्या आएगा, 2 raised to power n सच दैट हमारा 1 आ जाए। तो बताओ यहाँ पर अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, शुरू करते हैं हम 2 raised to power 1 से, 2 raised to power 1 is 2, ठीक है, 2 raised to power 2 यानी 2 into 2, और बीच में यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 15, तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा ना। 2 की पावर 4 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 15, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 4, 4 चौक 16, मोड 15, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो 2 रेज टू पावर अगर मैं 4 कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, 1 मोड 15 आ रहा है, बिकॉज 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 2 to the 4 to the 12, सॉरी 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 इज 1 मोड 15, राइट। तो यहाँ पर हमारा 2 का ऑर्डर क्या आ जा रहा है, 2 का ऑर्डर हमारा आ जा रहा है 4। अब मुझे बताइए 11 का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 11 क्या आएगा, 11 की मैं क्या पावर रेज करूं कि वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए। सो 11 इंटू 11 क्या आ जाएगा, 121, क्या वो 1 कॉन्ग्रुएंट 15 है, सोचो 15 8 कितना होता है, 15 8 जा 120, सो राइट। 11 का अगर हम स्क्वायर ही कर दें तो वही हमारा क्या आ जा रहा है, 11 स्क्वायर इज 121, विच इज अगर मोड 15 में लगा दूं तो क्या आ जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 11 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो बाकी सबका भी ऑर्डर निकाल के देखना, यहाँ पर 4 का ऑर्डर क्या होगा, 8 का ऑर्डर क्या होगा, 14 का ऑर्डर क्या होगा। अब इस ऑर्डर की सहायता से ही हम साइक्लिसिटी, जनरेटर, इन सबको डिफाइन कर सकते हैं। इस ऑर्डर से मतलब इन एलिमेंट्स से ही हम सब ग्रुप्स बना सकते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सब ग्रुप हमारा क्या होता है। ठीक है, तो सिंस हमने सेट पढ़ा, फिर हमने सबसेट पढ़ा, तो सबसेट की क्या डेफिनेशन थी, ए को बी का सबसेट कब बोलते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो।
अगर x हमारा a में है तो वो हमारा b में भी जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि a हमारा b में कंटेंट है। अब हम किसकी बात करें, अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा a ग्रुप है तो सिंपल एक सेट तो ग्रुप बनता नहीं है, राइट। ग्रुप इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। तो हमारा क्या होगा, a कॉमा स्टार हमारा क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ग्रुप है मतलब वो क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टार, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टार, और हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू द स्टार, और हमारा कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा एवरी एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार। ठीक है ना, ओके, टिप टॉप। अब हम बात करते हैं सब ग्रुप। तो सब ग्रुप है तो इसका ही कुछ हिस्सा होगा। तो सबसे पहले तो इस ए का एक सबसेट होगा बी। ना सवाल बनता है क्या हर एक सबसेट हमारा, क्या ए का हर एक सबसेट सब ग्रुप बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ट्रिवियल ग्रुप है उसमें एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए। एम्प्टी सेट कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन एम्प्टी सेट इसका सबसेट तो है, ए का सबसेट एम्प्टी सेट है, राइट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। बट एम्प्टी सेट सब ग्रुप नहीं बन पाएगा, मतलब कि हर एक सबसेट सब ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सब ग्रुप बनने के लिए उसको और भी कुछ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, मात्र ए का सबसेट होना काफी नहीं है। तो वो क्या कंडीशंस है? तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो बी आपका ए का सबसेट होना चाहिए। दूसरा, ये जो बी है ये विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार द सेम बाइनरी ऑपरेशन खुद भी एक ग्रुप बनना चाहिए, खुद भी एक ग्रुप बनना चाहिए। मतलब कि फिर से वही चार, इस पर खुद भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, और इनवर्स भी हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर हमें एक सेट दिया है सपोज 4 एलिमेंट का, तो हम बता सकते हैं कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे, 2⁴ दैट इज 16 जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम सब ग्रुप्स कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। पर हमें पता है कि एम्प्टी सेट तो बनेगा ही नहीं, उसके तो चांस ही नहीं है, तो मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। बट 15 भी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि इसमें से कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए ए में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी और आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने देखा सिंगलटन ए जो है वो ए का सबसेट है, बट इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही नहीं। ए तो आइडेंटिटी है नहीं ना, ठीक है। क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट है? ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ सबसेट्स हमारे ऐसे होंगे जो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, या तो उनमें आइडेंटिटी नहीं होती है, या वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अब हम यहाँ से इस बी से ए और बी दो एलिमेंट्स लेकर आए और उनके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो ए स्टार बी भी इसी सेट में जाना चाहिए, इस बी में ही जाना चाहिए। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा हमने, सब ग्रुप क्या है? सब ग्रुप को हम बोले तो ग्रुप लिखा हुआ है इसमें भी, राइट, तो वो इटसेल्फ भी एक ग्रुप होता है। पर क्या खासियत है कि उसका एक बाप होता है। ठीक है, सपोज ए विद रिस्पेक्ट टू द स्टार इज अ ग्रुप, देन बी विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार will be a subgroup of A if B with respect to star is also a group in itself। ठीक है, अगर ये खुद भी ग्रुप बन जाता है तभी हम इसको बोलेंगे कि B A का सब ग्रुप है। सही है, समझ आया? अब देखो सब ग्रुप का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ऑपरेशन सेम रहना चाहिए। तो एक तरह से तुम क्या बोलते हो कि यहाँ पर जो स्टार है वो क्या है, वो स्टार हमने डिफाइन किया होगा ए क्रॉस ए से लेकर ए पर। सही है, यही डेफिनेशन बताई थी बाइनरी ऑपरेशन की। और यहां पर भी सेम बाइनरी ऑपरेशन है, बस हमने क्या कर दिया है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब हमारी डोमेन क्या बनेगी, बी क्रॉस बी, और इमेज भी कहाँ आनी चाहिए, बी पर आनी चाहिए। तो हमने इसको स्टार को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ए के एक सबसेट पर। ठीक है, समझ आई ना बात? ओके, अब चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम सब ग्रुप का। तो सपोज हमारे पास है सेट ऑफ रियल, उसमें से हमने 0 बाहर निकाल दिया बिकॉज 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए स्टार बी आपका किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आइडेंटिटी की तरह कौन काम करेगा, इसमें आइडेंटिटी की तरह 1 काम करता है बिकॉज ए इंटू 1 हमारा ए के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब हम सेट ले रहे हैं एस जिसमें मैंने एलिमेंट लिया है 1 और -1, और मैंने एस अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, सेम बाइनरी ऑपरेशन, मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या ये एक सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि ये इटसेल्फ एक ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सिंस ये एक फाइनाइट ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में मैं ये सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से चेक कर सकती हूँ, केले टेबल बना सकते हैं
ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, एलिमेंट 1 है -1 है, 1 है -1 है, so 1 into 1 is 1, 1 into -1 is -1, -1 into 1 is -1, -1 into -1 is 1। तो हमने देखा जो सारी एंट्रीज हैं वो हमारी सेट से ही आ रही हैं, किसी भी रो में और कॉलम में एक एंट्री 2 बार नहीं आ रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है, एसोसिएटिविटी जो है वो बिगर सेट से छोटे सेट पर चली जाती है, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे सेट ऑफ रियल्स पर होल्ड करती है, आर स्टार पर होल्ड करती है, तो इस सेट एस पर भी होल्ड कर जाएगी। एसोसिएटिविटी हमारे बड़े सेट से छोटे सेट पर चली जाती है, तो वो यहाँ पर होल्ड कर जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या हमारा, हाँ इसकी आइडेंटिटी कौन था, 1 था, और 1 हमारा इस सेट में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हो आप 1 के रिस्पेक्ट में जो आपका कॉलम आ रहा है वो एज इट इज आपका हेडर कॉलम के जैसा आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स, क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपको दिख रहा है, हाँ 1 का इनवर्स 1 है और -1 का इनवर्स -1 है, दोनों एलिमेंट सेल्फ इनवर्सेस हैं, ठीक है। 1 भी खुद का इनवर्स है और -1 भी खुद का इनवर्स है, तो इनवर्स भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है दोनों एलिमेंट्स का। तो हमारा जो एस है विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन जो हमने सेट पर जो ऊपर हमने ग्रुप में डिफाइन कर रखा था, क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो एस है वो सब ग्रुप बन जाएगा, किसका सब ग्रुप बन जाएगा, आर अंडर आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आप ऐसे ही और कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल फाइंड आउट करने की। आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे कि सब ग्रुप हमें चारों प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चेक करनी होती है। सबसे पहले कि जो सेट एस है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर एस एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट तो कभी ग्रुप बना ही नहीं सकता। एस जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो नॉन एम्प्टी एंड ऑल्सो उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो हम फर्स्ट चेक करते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें आइडेंटिटी जा रही है कि नहीं जा रही है, और दूसरा जो हम चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऐसे करके हमारे पास क्या है, सब ग्रुप टेस्ट हमने बनाया है, जिससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। ये चारों प्रॉपर्टीज हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 स्टेप भी है 2 स्टेप भी है, ठीक है। उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। देन हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है, उसके लिए भी थ्योरम है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कल कि ग्रुप के एक एलिमेंट से हम कैसे सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जो जो पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आगे ये जो सेम चीजें हैं वो एज एन ट्रिवियल यूज होती रहेंगी, और वहां पर अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं आई तो आप नहीं कर पाएंगे।